ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਸ ਨੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ। ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਸਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी मनवीर, थैंक यू वेरी मच। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਵ, ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈਗਾ? देखिए मनवीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया है। देखिए, टेंशन्स, अगर मैं सत्य बोलूं तो इस समय टेंशन्स जरूर बढ़ रही हैं और बढ़ाई जा रही हैं, परंतु ये टेंशन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है कि हिंदू और सिख एक दूसरे के खिलाफ हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो है, फ्रिंज जो है, दोनों साइड पे, चाहे वो जो, मैं इंडियन साइड नहीं कहूंगा, मैं हिंदू साइड भी नहीं कहूंगा, मैं उसको हिंदुत्व साइड कहूंगा। एक हिंदुत्व ब्रिगेड यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें हिंदू राइट विंग, चाहे वो आरएसएस हो, बीएचपी हो, शिवसेना हो, जो या उनकी जो उनका एलिमेंट यहाँ पे आउटसाइड इंडिया कार्य करता है एचएसएस के नाम से, वो कार्य कर रहे हैं, या उनके कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, वो एक हिंदुत्व एजेंडा, वीएचपी है, वो हिंदुत्व एजेंडा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है खालिस्तानी, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो उसमें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, वो अपना एक एजेंडा स्टैब्लिश कर चुके हैं कई सालों से, जिसमें उन्होंने इंडिया विरोधी और अब पिछले 2-2.5 साल से उन्होंने शो करना शुरू किया है कि हिंदू भी जो है, हिंदू विरोधी भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। तो ये इन दोनों प्रोपेगेंडा के बीच में पहले हम लोग हमेशा, ये कोई बात नहीं थी, हम इसको खालिस्तानी फ्रिंज मान के इग्नोर ही करते थे, परंतु अब ये जो पिछले कुछ सालों से हिंदुत्व फ्रिंज भी काफी स्ट्रांगली डेवलप हुआ है, और जैसे खालिस्तानी फ्रिंज जो है वो कई सारे ऑलमोस्ट सभी आई वुड से गुरुद्वारों को कंट्रोल करना शुरू किया है, गुरु रविदास गुरुद्वारे को छोड़ के। इसी तरह से जो ये हिंदुत्व फ्रिंज है, इसने भी कई सारे टेम्पल्स, इफ नॉट ऑल, उनको कंट्रोल करना शुरू किया है। तो ये एक तरीका किया जा रहा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कम्युनिटी डिवाइड हो, और उसका असर हमने पिछले हफ्ते यहाँ पे कनाडा में देखा। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आम इंडो कैनेडियन इन सब चीजों से परेशान है, और वो ये चीजें नहीं चाहता। और हम लोगों के सब परिवार, हम लोगों के बिजनेसेस, हम लोगों की कम्युनिटी इतनी सांझी है कि हम अलग रह के कार्य कर ही नहीं सकते, परंतु हमें तोड़ने की एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत सोची समझी साजिश की जा रही है यहाँ पे। Why do you feel like this कि ये दोनों एक्सट्रीम्स
ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰੈਡੀਕਲ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀम ਕਮਿਊਨਲ ਧਿਰਾਂ हों। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, कनाडा को जो है बदनाम करने में इंडियन मीडिया का बहुत 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 बड़ा हाथ है। वो सोचते हैं कि ये देश जो है उस आज के दिन में जो मैं देखता हूँ, मैं भारत के अखबार वगैरह देखता हूँ या जो न्यूज मीडिया देखता हूँ, कनाडा को एक इंडिया का एनिमी स्टेट तक बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। यहाँ पे कोई ऐसा देखिए, खालिस्तान का जहां तक सवाल है, यहाँ पे जो लोग सन 80 वगैरह में जो शिफ्ट हुए, 80s और 90s में शिफ्ट हुए सिख कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी तो खैर कनाडा में पिछले 100 साल से रह रही है और बहुत पीसफुल, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इज्जत वाली कम्युनिटी रही है। उसके बाद हिंदुओं का भी आना शुरू हुआ, क्रिश्चियंस का भी आना शुरू हुआ, मुस्लिम भी आने शुरू हुए। परंतु आज भी कनाडा में जो पॉपुलेशन है, आई वुड से 50% जो है, बहुतायत जो है वो सिख कम्युनिटी की है, जिसका एक बहुत अच्छा दर्जा माना जाता है। सन 80s 90s में जो लोग आए हैं वो रेफ्यूजी स्टेटस में या वो जो इंडिया में जो खालिस्तान की प्रॉब्लम हुई थी उससे निकल के आए हैं। अब इंडिया इन सब चीजों से आगे बढ़ गया। हम वहां पे बढ़ गए। हम 90s के बाद ये एक नॉन इशू बन चुका है इंडिया में और हम लोग आराम से पीसफुली रह रहे हैं। परंतु ये लोग जिनके परिवारों के साथ काफी दुखद घटनाएं रही हुई हैं और जो इंडिया की एक ऐसी स्मृति, एक ऐसा चीज लेके आए दिमाग में, जहन में, कि उनके माँ, भाई, बहन, बच्चे, कोई भी किसी का भी बहुत बुरा तरीका से उनके साथ पेश की, उनके उनके साथ कार्य हुए हैं, तो वो ये दर्द जो है वो अपना मिटा नहीं पाए हैं और उसको उन्होंने को जिंदा रखने की कोशिश की है। दैट इज वाई आप देखते हैं कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट है, ये कनाडा जैसे देश में ज्यादा बातें करते रहते हैं और हमेशा, क्योंकि ये लोग उससे निकल ही नहीं चुके, निकल ही नहीं पाए हैं। कई लोगों के वीजा बैन रहे, कई लोगों को बाद में वीजा मिले भी, परंतु उनका इंडिया से नाता, और अब उनके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब जो है वो एक एक्सट्रीम एलिमेंट की तरफ जा चुके हैं, जहां पे वो बहुत से ऐसा फ्रिंज जो है वो कनाडा को, इंडिया को एनिमी स्टेट मानता रहा है। परंतु ये जो भी कार्य रहा है यहाँ पे, मैं इस बात में, क्योंकि मैं, आप मनवीर, आप मेरे को शायद 2 सवा 2 साल पहले से हमने जुड़ना शुरू किया, जब मैं सबसे पहले खालिस्तान रेफरेंडम जब यहाँ पे हुआ ब्रैम्पटन में, तो मैं एक अकेला व्यक्ति था जो खालिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था और करीबन 60-70 हजार लोग थे उनके सामने अकेला, क्योंकि इंडिया की प्रेजेंस, मैंने लोगों को बहुत कहा जुड़े, पर एक डर था, लोग नहीं आए, परंतु मैं खड़ा हुआ और उसके असर से उसके बाद जो रेफरेंडम्स हुए हैं, उसके बाद जो है खालिस्तान के सामने हम लोगों की तरफ से भी एक समुदाय जो खड़ा होना शुरू हो गया है। और मैं कई सारे रेफरेंडम्स, मैं तो बल्कि ये जो मंदिर का जो सो कॉल्ड, मैं इसको सो कॉल्ड कहूंगा क्योंकि ये कोई मंदिर पे अटैक नहीं था, उसमें भी जो लोग खालिस्तानी साइड से थे, मैं तो उनको चेहरों से भी जानता हूँ। आई बीन इंटरैक्टिंग इन द सेंस आई बीन फेसिंग देम एट वेरियस प्रोटेस्ट। सो अब मैं जानता हूँ ये लोग कौन है और क्या कार्य करते हैं। तो इनका देखिए, इन्होंने जो है इस फ्रेंच ने और खालिस्तान के सिंपथाइजर्स ने बहुत सी चीजें की हैं पिछले 50 सालों में कनाडा में, और स्पेशली इन द लास्ट 40 ईयर्स सिंस 80s। क्या चीजें? इनको फाइनेंशियल पावर बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने गुरुद्वारों पे कंट्रोल करके वहां से भी अपना फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग कर रखा है। इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल और सोशल कंट्रोल, इन्होंने, इनके बच्चे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, और न सिर्फ मैं खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के कहूंगा, सिख कम्युनिटी के भी बहुत से बच्चे जो है वो काफी अच्छी जगह पे पॉलिटिकल और सोशल पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। वकील है, डॉक्टर है, लीडर्स हैं। तो अब वो चीज, अब अगर उस समुदाय में अगर एक खालिस्तान की तरफ या एक सिख आइडेंटिटी की तरफ एक पहचान करने की कोशिश की जाती है, उसको उसको हम वायलेंट नहीं कर सकते। ये उनकी एक सोच है। मैं तो इन सब लोगों के साथ बैठ के बात भी करता हूं। हम किसी को भी दुश्मन नहीं मान सकते। वो उनकी सोच है। देखिए, हिंदुत्व के लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं उनके भी खिलाफ पिछले कई सालों से, पिछले 12 साल से खड़ा हो रहा हूं, और स्पेशली इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। हिंदू राष्ट्र की बात करना, भारत एक सेक्युलर, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में अमन चैन रहना चाहिए।
उसमें एक स्पेसिफिक रिलीजियस आइडेंटिटी बनाना गलत चीज है। तो चाहे अब हिंदुत्व को लोग जो मानते हैं वो भी हमारे मित्र हैं, जो खालिस्तान को मानते हैं वो भी हमारे मित्र हैं, हम सबके साथ है, जहां जब तक वो नॉन वायलेंट तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करें। जहां पे वायलेंस शुरू होती है वो गलत है। उस विचार, देखिए कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी भी चीज की, यहाँ तो क्यूबेक की भी बात करते हैं हम कि क्यूबेक को सेपरेट किया जाए कनाडा से, वी अलाउ दैट आल्सो। एक पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसकी 17 सीट है शायद फेडरल उसमें। तो वी आर अलाउइंग ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये भारत में जो है जहां पे सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, जहां पे कोई जरा सा भी बोल दे तो उसको दुश्मन या एनिमी या ट्रेटर करार कर दिया जाता है। ये समझना भारत के लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हर चीज अलाउड है जब तक वो एक बाउंड्री में रहे। और मैंने जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट वगैरह देखी हैं जो इन्होंने की है आज तक, मैं इनके सामने कितनी बार खड़ा हुआ हूँ, गालियां मिली हैं, अब्यूजेस हुए हैं, मुंह पे आके ऑलमोस्ट पास में आके उन्होंने थूका भी है, हर तरीके की चीज की है। एक पिछले साल की बात है, हाँ पिछले साल की बात है, जब उन्होंने इंडियन काउंसुलेट में निज्जर्स के हत्या के बाद जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसमें उन्होंने भारत के झंडे को जलाने की कोशिश की, और वो शायद वीडियो मैंने शेयर भी किया था, और उसके करीबन 2 करोड़ हिट हुए थे कि मैंने किस तरह से बीच में घुस के उस भारत के झंडे को बचाया भी था। तो हम इन लोगों से के सामने आते रहते हैं। इन्होंने जो भी चीजें की हैं, भारत के झंडे का अपमान भी किया, सब तरह की चीजें की, और हमने अपने तरफ से बचाने की कोशिश भी हमेशा की जब भी ऐसी कोई हरकतें देखी, परंतु इन्होंने वो वायलेंस नहीं की। इस बार जो हुआ है 3 नवंबर को, वो एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, और क्यों हुई है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ एक लेसन मिला है हम सबको कि कैसे कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट दोनों साइड में इतना बढ़ चुका है कि अब वो वायलेंस के लिए भी तैयार हो चुके हैं। वो गलत दिवांशु बात है। जी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बयान दिया, ही सेड कि ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹ ਆਲ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਆਲ ਹਿੰਦੂਸ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 1980s ਤੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਮਰਿੰਗ ਹੀਟ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮੌਬ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨੇ ਫਰੋਮ ਦ ਮੰਦਿਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ वक्त वायलेंस लेवल पे क्यों आई? प्लीज डू एक्सप्लेन काइंडली। देखिए ऐसा है, मैं खालिस्तानियों के खिलाफ सबक, जैसे मैंने बताया, उनके रेफरेंडम्स में खड़ा हुआ हूँ। और जब मैं खड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देना चाहूंगा इफ इट इज ओके। जब मैं खड़ा हुआ तो काफी सारी हिंदू कम्युनिटी और जो सो कॉल्ड इंडियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी है वो भी मेरे साथ जुड़ी, करीबन 1500 से 2000 लोग जुड़े। परंतु उसमें मैंने देखा कि वो जब भी वो बात करते थे तो वो सिखों के खिलाफ, सिखों को खालिस्तानियों के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। हिंदुत्व ब्रिगेड कैसे कार्य करती है? उनका एक स्टैंडर्ड तरीका है कि सिखों को खालिस्तानियों से जोड़ो, मुसलमानों की तरफ हेट करो, और उस तरह के वीडियोस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स शेयर करो। वो जब शेयर होते थे, एक मैंने ग्रुप शुरू किया था भारत क्लब, जब उसमें शेयर होते थे मैं उनको कंटिन्यूअसली डिलीट करता रहता था, लोगों से करता था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं इसको एक हिंदुत्व टाइप का ग्रुप नहीं बनाना चाहता, तो उन्होंने ये शुरू किया कि मैं एंटी मोदी और एंटी हिंदू और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स उन्होंने शुरू की, जिसको मैं पिछले 2 सवा 2 साल से वो बुलिंग और उन लोगों को भी जानता हूँ, वो मैं फेस कर रहा हूँ और फेस कर चुका हूँ। तो ये लोग जो है, ये इनकी एक विचारधारा जो है वो एक एक्सट्रीम हो गई है। इनका ये सोच है, और इनकी ये बहुत, देखिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे एनिमीज हैं। इनकी ये विचारधारा जिस पे चलती है कि मुसलमान को ये एनिमी मानते हैं और उनको अलग करो। सिखों को ये कहते हैं कि सिख जो है, जो सिख कहता है कि मैं हिंदू हूं या मैं ओरिजिनली हिंदू ही हूं, उसको तो कहते ठीक है, ये अपना बंदा है।
जो सिख कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरी अपनी खुद की सिक्खी है, मैं अपनी खुद की अपनी पहचान है, उसको ये खालिस्तानी डिक्लेयर करना शुरू कर दे। ये अनफॉर्चुनेटली एक तरीका बन चुका है यहाँ पे हेट फैलाने का। और ये कैसे बढ़ा? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ तो ये रहा ही है, जो इन्होंने इनका उसके उसके बेसिस पे आप जानते हैं, इवन नरेंद्र मोदी भी उसके बेसिस पे हमेशा हर जगह जब कोई और इश्यू ना हो तो उसके बेसिस पे वोट कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। परंतु सिखों के खिलाफ कैसे बढ़ा? फार्मर प्रोटेस्ट। जब फार्मर्स का जो कानून, जो 3 काले कानून हुए और उसके बारे में मैंने भी यहाँ पे हमने कई बार उसके बारे में चर्चा की यहाँ पे। जब वो कानून लाए गए और उसका विरोध शुरू हुआ, जिसको कनाडा में भी यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक इमोशनली और परिवार भी जुड़े हुए इंडिया से जुड़े हुए हैं। और कई लोग जो है फार्मिंग कम्युनिटी से भी यहाँ पे आए और यहाँ पे भी फार्मिंग करते हैं। जब उसका विरोध शुरू हुआ और यहाँ पे रैलीज वगैरह और यहाँ से, तो उसका एक दुष्प्रचार शुरू हुआ कि ये जो है ये खालिस्तानी वहां पे भारत में स्पॉन्सर कर रहे हैं, खालिस्तानी कैनेडियन वहां पे स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक तो इंडिया में ये दुष्प्रचार शुरू हुआ। दूसरा, जब उन्होंने भारत के फार्मर्स को खालिस्तानी बोलाना शुरू कर दिया, देखिए ये एक बहुत छोटा सा फ्रिंज था, मैं तो कहूंगा 0.1% भी नहीं था। ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते थे गुरुद्वारों में आके करना, और या पैनोरामा वगैरह जो इंडिया के इवेंट्स वगैरह में करते थे, लोग इनको इग्नोर करके यहाँ चलो ठीक है बोल रहे हैं, ऐसे करके चले आते थे। जब आम सिटीजन को और आम भारतीय को बीच भाजपा के नेताओं ने, आरएसएस बीएचपी के लोगों ने खालिस्तानी बुलाना शुरू किया कि पगड़ी से पहचानो और इस तरह की हरकतें शुरू की, उससे यहाँ के लोग जो है, जो मॉडरेट लोग थे, वो भी भड़के, जिसको कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात जो है। उनको लगा कि हमारे हम भारत के लिए हमारी कुर्बानियां रही हैं, भारत की आजादी से लेकर हर चीज में कुर्बानियां रही हैं। एक कौम को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही थी, उससे ये लोग जो है बहुत भड़के हैं। और उससे पन्नू जैसे लोगों को और जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, उनको गुरुद्वारों में भी उनको हर जगह ज्यादा सपोर्ट मिली, उससे ये ज्यादा उजागर हुआ। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली 3 नवंबर की इंसिडेंट्स को। जी। जैसा कि मैंने कहा कि जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स थे उनको मैं जानता हूं, उनको जानता हूं इन द सेंस बाय फेस में, उनको कुछ को तो मैं नाम से भी जानता हूं, कुछ को बाय फेस में जानता हूं। तो वो लोग वहां पे, देखिए वो सबसे पहली चीज जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए और जो भारत के लोगों को मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जितना भी बात कर सके, क्योंकि हमें मौका नहीं मिल पाता भारत में बात करने के लिए। सबसे पहली चीज है, ये प्रोटेस्ट मंदिर के खिलाफ नहीं थी, ये किसी भी हालत में किसी भी धार्मिक प्रोटेस्ट की तरह नहीं थी। ये लोग खालिस्तानी जो है, भारत की जो इंडियन काउंसुलेट है, ये लोग इंडियन काउंसुलेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि न सिर्फ इंडियन काउंसुलेट की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो ट्रूडो हिमसेल्फ और ट्रूडो गवर्नमेंट ने, लिबरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो दिखाए हैं कि निज्जर की डेथ में इंडियन एलिमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग हाथ था। इनफैक्ट इंडिया नहीं करवाया ये, यहाँ पे ये सरकार खुद बोल रही है। उसके अलावा यहाँ पे हम कैनेडियन लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को बहुत ट्रस्ट करते हैं। दे आर कंप्लीटली सेपरेट, दे वर्क ऑन देयर ओन। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 8 होमिसाइड्स और 22 एक्सटॉर्शंस के केसेस जो है आरसीएमपी ने यहाँ पे, जो हमारी सेपरेट बॉडी है एक तरह से, आप अपने एफबीआई नहीं, क्या है, सीबीआई या सीबीआई। इस तरह की, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो है, ये भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और भारत के एम्बेसी के लोगों की तरफ से ये घटनाएं मॉनिटर की गई है, कराई गई हैं, एक तरह से उनके आरोप तो कराई गई हैं कि बात ये मॉनिटर। इससे ये जो एलिमेंट है, इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिला कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, हम आजकल इंडिया में होता है घुस के मारेंगे एंड ऑल दैट, ये सब ब्रेवेडो जो है, ये बेकार की चीजें हैं, इससे देशों के संबंध नहीं चलते। हमारे को वर्ल्ड की कन्वेंशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। कनाडा एक आपका फ्रेंडली देश रहा है। कनाडा में घुस के आप कहेंगे कि हम घुस के मारेंगे या इस तरह की, कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माना जाएगा, तो एज अ कैनेडियन सिटीजन मैं भी कहूंगा ये गलत है। कल मोदी जी के खिलाफ भी कोई बोल रहा है, जैसे मैं, मेरे जैसे एक्टिविस्ट भी अगर बोलता है, हमें भी अगर घुस के मारने की बात करेंगे या किसी को भी करेंगे, तो ये गलत है। आप अपने देश में, हमारे, अगर मैं देश में आता हूँ, आपको बातें गलत लगती हैं, आप वहां पे मुझ पे जो भी कार्य करना है, मुझे जेल में डाले, जो करना है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। आप कनाडा में आके कहेंगे कि हम तुम्हें घुस के मारेंगे, ये करेंगे, ये चीजें गलत है। हमें देश की बाउंड्रीज की लिहाज करना चाहिए।
और अगर हम यहाँ देखिए, दूसरी बात, जो भी बात करता है खालिस्तान की, मैं फिर से आपके दर्शकों को कहूंगा, हमारे मेरे कई सारे मित्र भी बात करते हैं इसकी, जिनको मैं जानता हूं, गुरुद्वारों में मिलते हैं, हम लंगर साथ खाते हैं, कार्य साथ में करते हैं। अगर वो खालिस्तान के सिंपथाइजर हैं तो वो एनिमी नहीं है। उनको किस तरह से वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं मॉडरेट सिक्स, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम आए उस इंसिडेंट्स की बात पे, वहां पे लॉरेंस बिश्नोई के जो लॉरेंस बिश्नोई के जो नारे थे वो मंदिर कंपाउंड से नहीं लगे, मंदिर के बाहर लगे। देखिए, तो हम वहां पे वो इंडियन काउंसुलेट का इवेंट था, उससे पहले जो गुरुद्वारे में भी इवेंट हुए हैं जहां पे इंडियन काउंसुलेट आए हैं, उसके खिलाफ भी ये खालिस्तानी फ्रेंच जो है वहां पे प्रदर्शन करने गया है। तो सबसे पहली चीज ये बहुत क्लियर है कि ये कोई मंदिर के खिलाफ नहीं था, ये गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, ये बेसिकली काउंसुलेट के ऑफिसर्स के खिलाफ, कि आपको हम काउंसुलेट से बाहर निकल के इंडिया के इवेंट्स वगैरह नहीं करने देंगे। ये गलत है तरीका, ये गलत है सोच, क्योंकि वो लाइफ सर्टिफिकेट से इशू कर रहे थे, पर ये उनकी रियलिटी है, ये वो कर रहे थे, मंदिर के खिलाफ नहीं था। दैट हैज टू बी अगेन रिमेंबर्ड। नाउ इस बार देखिए, हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, काउंटर प्रोटेस्ट करते हैं भारत के पक्ष में, तो हम ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारे जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, या जैसे मैं खुद हमेशा सामने खड़े होते हैं, हम सामने खड़े होते हैं, हम भारत की बातें करते हैं। ये लोग गालियां देते हैं, हम अपने बंधुओं को कहते हैं आप ठंडा रखो, आप कंट्रोल में रहो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। इस बार ये क्या है, मुझे तो ये साजिश लगती है, परंतु क्या रियलिटी है ये पता चलेगा, ये हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बार उन्होंने न सिर्फ हरियाणवी बच्चों को बुलाया, जिनको भी मैं जानता हूं, और किसने बुलाया उसको भी जानता हूं, तो ये उनको लोगों को, बच्चों को बुलाया गया, और कुछ गुंडा एलिमेंट भी आया जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नारे वगैरह लगाए। उन बच्चों को बुलाया गया, उन बच्चों ने, उनको या तो पकड़ाई गई या उन्होंने अंदर से मेटल रॉड और स्टिक्स वगैरह भारत के झंडों के अलावा वो भी पकड़ी, और इस बार उन बच्चों को खालिस्तानियों के सामने खड़ा कर दिया, और न सिर्फ खड़ा किया, बिल्कुल ऑपोजिट ईच अदर, बिल्कुल आमने सामने खड़ा किया। अब आप देखिए, दो गरम खून, और स्पेशली हम ये जो बच्चे हैं, ये इंटरनेशनल, ज्यादातर लोग ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इनको कहते हैं तुम्हारे को फ्री खाना होगा, तुम्हारे को, और उनको लगता है इज्जत मिलेगी, और सबसे बड़ा खून गर्म हो जाता है कि मैं भारत के लिए खड़ा हो रहा हूँ, और ये है, और मैं भारत का वो कर रहा हूँ, और खालिस्तानियों का विरोध कर रहा हूँ। वो सब भरा हुआ प्रोपेगेंडा जो आता है, और आप उसको सामने भीड़ में खड़ा कर दो, दूसरी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नारे हो रहे हैं, तो झगड़े शुरू होंगे। और अब देखिए, ये अगेन एक बात है जो मैं, आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू इट, कि उनको कराया गया या उन्होंने खुद किया, जो भी चीज थी, उस समय इस हालात में हाथ उठा। और वो जो वीडियो है, जो मैंने कई बार देखा है, उसके 2-3 वीडियो देखे, किसका पहले हाथ उठा, ये कहना गलत, ये कहना जो है, मैं नहीं समझ, इट वाज लाइक जस्ट लाइक अ स्प्लिट सेकंड, भारत की तरफ से या इंडियन इस हिंदुत्व की तरफ से हाथ उठा, या खालिस्तानियों की तरफ से हाथ उठा, ये कहना बहुत मुश्किल है। हाथ उठा और एकदम वायलेंस शुरू हुई, और फिर डंडेबाजी और ये वो, और वो मेटल रॉड भी से भी पीट रहे हैं। फिर कुछ बच्चों ने अंदर से भी, जो भी पत्थर वत्थर देखे, उन्होंने अंदर से भी उठा के पत्थर फेंके। ये घटना मंदिर के बाहर हुई, मंदिर के अंदर नहीं हुई। अब इस घटना के बाद और जो हुआ, जो वो बच्चे जो हरियाणा नहीं, मैं कहूंगा भारत की तरफ से, या जो भी, आई वुड नॉट, मैं उनको भारतीय नहीं मानता, क्योंकि भारत के लोग ऐसी वायलेंस को पसंद नहीं करते। तो वो जो भी एलिमेंट था, मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने जब जब वो थोड़े पिटने लगे, तो वो भागे। अब भागना भी आप देखिए, मंदिर की इज्जत का, मंदिर की सैंक्टिटी का वो करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भाग रहे हो तो आप स्ट्रीट पे भागो ना, आप स्ट्रीट पे आगे भागो, बचते हुए भागो। ये भागते हुए मंदिर के अंदर आए। अब वो क्यों आए अंदर, वो डर के आए, या उनको कहा गया था कि तुम मंदिर के अंदर आना? अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, जो पुलिस जी को देखना है। वो जी मंदिर के अंदर आए, और ये खालिस्तानी लोग जो है उनके पीछे भागते हुए अंदर आए, और उन्होंने किसी भी डिवोटी पे हाथ नहीं उठाया, उन्होंने इन बच्चों पे हाथ उठाया, इन बंदों पे हाथ उठाया, और वो मारपीट हुई, जिसके दृश्य जो है, एडिटेड वर्जन जो है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं कि उन्होंने मंदिर में घुस के मारा, और ये सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। और जैसे ही पुलिस ने देखा कि बात बढ़ गई है, और ऐसी पुलिस भी आई, खालिस्तानी के जो इनके सीनियर लीडर से वो भी आए, उन लोगों को बाहर निकाल के ले गए। दैट्स इट, दैट वाज द इंसिडेंट, जिसका बहुत बड़ा वो बनाया गया। और उसके दिवांशु बाद, जी जी सॉरी, जी आपने बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट तो बाद ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਸ देयर ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत टारगेट किया जाता है। मुझे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, ट्रेटर, पाकिस्तानी 100 तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। खालिस्तानी मेरे को इंडिया एजेंट बोलते हैं, ये लोग पाकिस्तानी एजेंट सब तरह की चीज़ें। मैं तो खैर अब अब्यूज़ से वो हो चुका हूँ। नहीं, I have उनका seen. Let me add for the audience कि I have seen वो जो ग्रुप है आपका उस ग्रुप के अंदर I have seen कि कितनी vicious poisonous hatred आपकी तरफ आता है when you delete the message ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ RSS ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ you immediately delete and ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ I have seen. I have been a तो अब silent observer in the group. Let me add another fact for the audience ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਯੂ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੁਸੀਂ IIT ਬੰਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਮ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ प्रॉब्लम ਇਹ कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ये इनका इनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। देखिए क्या होता है, बुली करने का और ट्रोल करने का तरीका है कि कुछ भी बोलो। मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता था, मैं 15 12 14 साल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता रहा। मेरा कॉलम हर महीने में 2 बार भी आता था। पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मेरे आर्टिकल, क्योंकि मैं हिंदुत्व राष्ट्र और जिस तरह से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जो घटनाएं कनाडा में कराई जा रही हैं, हेट बढ़ाई, जब उसके खिलाफ लगा तो उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा कि हम आपके आर्टिकल्स नहीं छापेंगे। तो इंडिया में तो खैर टोटल बैन है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो मीडिया इज फुली कंट्रोल, आप कुछ बोल नहीं सकते। रियलिटी ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक HSS करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसके पहले तो 8 होते थे। अब मैंने सुनने में आया कि 14 शाखाएं हैं। बिल्कुल लिटरली मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, पर मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो इसमें कार्य करते हैं। 1-2 लोग ऐसे हैं जो VHP के भी अपने बंदे हैं। एक व्यक्ति है, वो अपने को VHP का कनाडा का प्रेसिडेंट बोल के, और काफी काफी एक्टिव है। इन्होंने सब टेम्पल्स वगैरह में कंट्रोल, एक तरह से ये हो गया है कि अगर कोई इनकी बात को नहीं मानता, अगर कोई मोदी की जय जयकार नहीं करता और RSS VHP बजरंग दल इस तरह के एलिमेंट की बात नहीं मानता, तो उसे स्ट्रेट अवे सीधा हिंदू विरोधी डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसको टेम्पल प्रशासन और उनके इशू उनसे अलग कर दिया जाता है। मेरे जैसे, मैं अगर टेम्पल में जाता भी हूं तो मेरे को ये ऐसे घृणा की निगाहों से देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई एनिमी आ गया है। ये जो मॉडरेट हिंदूज हैं, जो सेक्युलर हितवादी हिंदू हैं, उनके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त हेट, और स्पेशली मेरे जैसे एक्टिविस्ट के खिलाफ तो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। ये अच्छा, ये 1 साल में नहीं हुआ है, ये 2 साल में नहीं हुआ है, ये पिछले 10-12 साल से है। और स्पेशली इन द लास्ट डिकेड इसको धीमे धीमे करके बढ़ावा दिया है, और ये इस स्थिति में आ गया है कि इनके कंट्रोल पूरी तरह से है। और तभी आप देखिए इसका इसका एग्जाम्पल, इसका प्रूफ जो है, ये जो घटना हुई 3 तारीख को, ये सुबह की घटना है, इसको कंट्रोल किया खत्म हो गई घटना, कंट्रोल करें। अब इसको देखिए, यही इस बात से मुझे दुख है कि इन्होंने इस घटना को इस तरह से बढ़ाया। दुनिया भर के एडिटेड वीडियो सब जगह व्हाट्सएप करने शुरू हो गए, इंडियन कम्युनिटी में यहाँ पे हुए, इंडिया में भेजे गए, फिर और लोगों को बुलाया गया, वहां पे सैकड़ों की भीड़ खड़ी कर दी गई। उसमें वहां के मंदिर के प्रीस्ट ने इस तरह का भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया कि हिंदू बड़ा पीस पर हम शांति में विश्वास
डाल सकते हैं, परंतु अगर कोई हिंदू पे अटैक करेगा तो फिर भीड़ बोलती है मार डालेंगे, वी विल किल देम एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह के वीडियो वहां पे किए गए और प्रीस्ट बोल रहा है, और उस प्रीस्ट को अगले दिन जब प्रेशर आया, उसके अगले दिन 5 तारीख को जब प्रेशर आया मेयर की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से, उस प्रीस्ट को सस्पेंड किया गया। 2 दिन बाद उसको रीइंस्टेट कर लिया गया, जो भी उनको उस तरफ से हिंदुत्व की साइड से आया होगा कि नहीं हमको पूरा वो होना है, उसको रीइंस्टेट कर लिया गया। इस तरह के वाइल्ड व्यक्ति को यू आर गोइंग टू अलाउ हिम टू बी अ प्रीस्ट इन योर टेम्पल? व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर यू कम्युनिकेटिंग? उस दिन शाम को और फिर रात को मॉर्टन गुरुद्वारा, जो हमारा एक मेन गुरुद्वारों में से, उसके सामने 300-400 लोगों की भीड़, मास्क पहन के, बैट्स लेके और बिल्कुल प्रॉपर एक तरह से अटैक करने के लिए गुरुद्वारे में। ये क्या तरीका है? ये केवल समुदाय को भड़काने और समुदाय में आग लगाने की कोशिश थी। फॉर्चुनेटली पील पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने उनको गुरुद्वारे के अंदर नहीं घुसने दिया, रोका, भगाया उस भीड़ को, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, वो कार्य नहीं हुआ। उसके अगले दिन आपने भारत क्लब में भी देखा होगा कि उन्होंने मैसेज डाला, मैंने उसमें भी बोला, मैं कहा कि हम 6 बजे शाम को 4 तारीख को मीटिंग करेंगे कि, और वो क्या कहते हैं कि हिंदू सभा टेम्पल का जो प्रेसिडेंट है वो परेशान है, वो डरा हुआ है कि बहुत परेशानी है हिंदुओं पे और इस तरह से। तो मैंने उसमें तब भी लिखा, मैं कहा ये गलत बात है, आपको अगर बात करनी है तो शांति की बात करनी है, इस समय थोड़ा रुक के करनी चाहिए। और वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन COHH है, नहीं ऐसे कुछ है, उसने इस समय ये सब चीजें ना करके हमें शांति की बात करनी चाहिए। परंतु शांति की बात ना करके वो वहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए। एक रॉन बैनर्जी जिसको अरेस्ट भी किया गया है ना, रॉन बैनर्जी को तो मैं जानता हूं पिछले कई साल से, वो तो खैर बंदा ही थोड़ा इस तरह का है, परंतु और भी लोगों ने किस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, भीड़ को सड़क पे छोड़ दिया, जिसने तोड़फोड़ की। ये इन्होंने जो है, आई वुड से, मैं समझता हूँ ये कि इन्होंने एक सेल्फ गोल किया है, हिंदू कम्युनिटी को बदनाम किया है, भारत को बदनाम किया है इस तरह की हरकतों से। और ये हरकतें बंद करने की जाए, इसके लिए हम पिछले हफ्ते भर से कार्यरत हैं। और मैं चाहूंगा और मैं समझता हूं कि लोग भी अब समझ रहे हैं कि इन चीजों से हमारा कोई फायदा नहीं। हरियाणा के बच्चे, ये जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डाले गए, ये समझ रहे हैं क्या है, इनको आगे किया, अब ये सब पीछे भाग गए। अब वो बच्चों का करियर तबाह हो रहा है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको कुछ को पकड़ा जा रहा है, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, उनको पकड़ के उनको डिपोर्ट करके वापस भेजा जाएगा, उनका करियर का सत्यानाश यहाँ पे ये लोग करने को तुले हुए हैं। इस तरह की हरकतों से वो, देखिए चाहे भारत में है, हम भारत में जानते हैं किस तरह से समुदाय मॉब को खड़ा किया जाता है, चाहे यहाँ पे, इन घटनाओं में कुछ नहीं रखा है। और मैं, जो दर्शक कनाडा में भी देख रहे हैं और भारत में भी देख रहे हैं, आप इन चीजों से दूर रहो। ये पॉलिटिकल लोग जो है, इनका केवल एम है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस पावर और मनी गेन करने का। इनसे जुड़ के आप अपने परिवार को, अपने करियर को तबाह करोगे। एक बात मेरे से, अभी मेरा वाई मीडिया यहाँ पे एक बहुत फेमस पंजाबी चैनल है, उसमें इंटरव्यू था मेरा परसों, मैंने वहां पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं हम हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम सिख को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां पे गुरुद्वारे में भी भाषण अभी हुए कि हमको प्रोटेक्ट। मैं कहा हम बंदे हैं, हम भगवान, अगर मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम क्या ईश्वर को प्रोटेक्ट करोगे? ये सोच ही गलत है। आप ईश्वर पे विश्वास रखो, वो सबका है, ईश्वर एक ही है, सबका है, वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। ये हरकतें बंद कर दी जानी चाहिए। दिवांशु जी, आप एक पीस की बात कर रहे हो कि दोनों समुदाय में, दोनों कम्युनिटीज में आपस में जो को एग्जिस्टेंस है, आपस में मिलके भाईचारे के साथ रहना, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ polarization ਨਾ ਹੋਵੇ on the basis of religious extremes, rather coexistence ਵਧੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂबर भी ਤੁਹਾਡਾ साथ दे रहे ने? What are your efforts now? देखिए ऐसा है कि हाँ, मैं अभी से नहीं, मैं तो मैं ये ग्राउंड लेवल पे एक्टिविज्म जब भी, देखिए मेरा कोई ये नहीं है, मेरा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ और किसी भी समुदाय को आइसोलेट करना, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, उसके खिलाफ मेरा कार्य रहा है। जब सीएए की कानून आए थे, काले कानून सीएए के आए थे, मैं तब से लोगों से जुड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं उससे पहले बीच में, पहले इंडिया भी रहा हूँ बीच में,
और फिर मैं नायग्रा फॉल्स वगैरह रहा हूँ, मेरे बिज़नेसेस थे। मैं टोरंटो में ऑलमोस्ट 2019 के करीब आया हूँ और तब ये हरकतें देखी, तब मैं यहाँ के लोगों से जुड़ा। और सीएए के स्ट्रगल में हमने यहाँ पे बड़े सारे कार्य किए, बड़े प्रदर्शन किए। मैं मुस्लिम समुदाय से यहाँ पे जुड़ा, जो सेक्युलरवादी हिंदू लोग हैं उनसे जुड़ा और उसके बाद मैं इंडिया भी गया, शाहीन बाग में भी मेरा स्पीच हुई और आईआईटी बॉम्बे वगैरह में भी गया। काफ़ी कार्य इंडिया में भी किए, यहाँ पे भी किया। योगेंद्र यादव जी के साथ मिले थे तब तो मतलब हम ये कार्य जो है ये अभी फिर फार्मर प्रोटेस्ट हुई जब भी कोई और फिर रेसिज्म की कोई बात आती है तो रेसिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं। जब भी कोई कम्युनिटी का कार्य होता है, देखिए हमारा पर्पस है कि हम सोशली लोगों को जोड़ के रखें और जो ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको आइसोलेट करना, उनके बारे में मैं अपने लेखों की तरफ के थ्रू लिखता था। मेरे लेख भारत में तो पब्लिश करने बंद कर दिए। अब जो भी है कनाडा में मैं कोशिश करता हूँ। कनाडा में कई सारे चैनल्स वगैरह में बुलाते हैं, वहां पे मैं इस तरह की बातें करता हूँ। हर चाहे वो अच्छा और हमारे मित्र जो है सभी समुदाय में है। ये नहीं है कि कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान भी है और यहाँ पे कोई पाकिस्तान और भारत का भी कोई नहीं है। पाकिस्तानी भी हमारे मित्र हैं, ऐसा कोई हर तरीके के पूरे क्रिश्चियंस भी मित्र हैं, व्हाइट्स भी मित्र, कोई ऐसा मित्रता की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो हम सब लोग एक साझे होके रहते हैं और स्पेशली हमारे साउथ एशियन लोग कम्युनिटी जो है हम तो बिल्कुल एकजुट होके रहती है। देन आई गो टू ऑल काइंड ऑफ चैनल्स, आई टॉक टू पीपल, आई वी अच्छा फिर मैंने एक चीज महसूस की पिछले कुछ महीनों से कि ये कार्य अकेले करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या है या अकेले या कुछ मित्रों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना चाहिए। तो मैं अभी 4 महीने पहले फिर मैंने जब जब राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस बार इंडिया के इलेक्शन हुए जिसमें एक तरह से 400 पार का नारा था और दुनिया भर का वो हुआ था, उसमें जिस तरह से एक सेक्युलर ऑल्टरनेटिव बन के आया, तो यहाँ पे इंडिया अलायंस के आम आदमी पार्टी वगैरह के और इंडिया अलायंस के फंक्शंस हुए, उसमें भी हमने आई वाज इनवाइटेड, वहां पे भी मैंने बात की, अपनी स्पीचेस वगैरह दी, उसमें भी जुड़े। पर अब हमने सोचा कि एक हमें सेक्युलर ऑल्टरनेटिव डेवलप करना पड़ेगा जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लिए भी, कि जो लोग सेक्युलरवादी विचारधारा में जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ा जाए। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप भी फॉर्म किया है जिसमें कांग्रेस के कई सारे लोग भी जुड़े हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सब तरह के, जो सीपीआईएम के भी कुछ लोग जुड़े हैं, तो हम सब कोशिश करेंगे सब तरह के लोग जुड़े और हम इसको एक ऐसा, हमको क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, इनका पहले एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी होता था, फिर वो बैन हुआ तो इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया करके खोला। बीजेपी के पास पैसा है, धन है और उनके पास बहुत स्ट्रांग बेस है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक सेक्युलर बेस बनाएं और उसके लिए कार्यरत हैं हर तरीके से। और जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मेरे सारे कार्य हो चुके हैं, मेरी तो सारी जिंदगी इसके लिए कार्य करने में लगी रहेगी। दिवांशु जी, आपके बहुत कैटेगोरिकल थॉट्स हैं, आपका स्टैंड बहुत स्पष्ट है ऑन बोथ द एक्सट्रीम्स, हिंदुत्ववाद जी से भी और खालिस्तानी से भी। जी। ਸਾਡੇ एंड ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ इस्लामिक ऑल्सो, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। एंड इस्लामिक ऑल्सो, अगर कोई भी अगर रूढ़ीवादी बातें करता है, मेरा, चाहे वो कास्ट सिस्टम की बात करता है, चाहे वो वुमेन डोमिनेशन की बात करता है, चाहे वो किस तरह के भी लोगों को तोड़ने की बात करता है या झुकाने की, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, वी स्टैंड अगेंस्ट दैट ऑल्सो। जब यहाँ पे कास्ट, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में जब कास्ट का बात आया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी केसेस आए, तो ये जो जी। सो कॉल्ड हिंदुत्व ग्रुप है ये उसके लिए खिलाफ भी खड़ा हुआ कि नहीं, ऐसा कास्ट, हिंदुओं में कोई कास्ट का नहीं होता और यहाँ पे तो हम सब लोग, यहाँ तो ये तो केवल एक मजाक बना, हिंदुओं को बदनाम में। आप हर जगह तो कास्ट सिस्टम चलता है, मैट्रिमोनियल ऐड कोई भी आप पेपर खोल ले, हर जगह, और फिर हम कहते हैं कास्ट सिस्टम नहीं है क्योंकि उसकी तरह से लोगों को परेशान करके और फिर हम कहें कि ये चीजें नहीं है। तो वी सपोर्टेड, यहाँ पे एक दलित नेटवर्क है, साडन है, विजयपुरी जी जो है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उसके साडन के हेड है। दलित और आदिवासी नेटवर्क, हम उन सबके साथ हैं। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी, किसी भी तरह का लोगों को आइसोलेट करने का, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू भी हो, अगर हिंदू को भी अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता है, हम उनके साथ भी जुड़े हुए। हम ये चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, दैट इज व्हाट इज द एम। वी हैव सीन लेटली कि दोनों एक्सट्रीम जो इस समय कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, चाहे वो खालिस्तानी या हिंदुत्वी हैं, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਪਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ। और वीडियोस हैं, वीडियोस। दिवांशु जी, आर यू फीलिंग सेफ इन कैनेडा? कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है आफ्टर ऑल दिस? 100% सेफ। हम यहाँ की पुलिस में, यहाँ के प्रशासन में पूरा विश्वास रखते हैं और हम हर तरीके से, कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई सिख खतरे में नहीं है, सब तरीके से। ये अगर कोई भारत में ये बात करता है, हाँ मैं समझता हूं कि भारत में जिस तरह की राजनीति जो होती है और जो उसको सड़क पे आके, चाहे वो हम जानते हैं कितने एग्जाम्पल्स हैं, चाहे गौरी लंकेश है, नरेंद्र दाभोलकर है, और कितने लोगों को, और स्याही किस तरह से रोका। पंजाब में अभी जब घटना हुई, जब क्या व्यक्ति है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अभी जेल में भी है, अमृतपाल जी। अमृतपाल जी के नाम पे कितने सारे सिख एक्टिविस्ट को, जो केवल सिक्खी के समर्थन में बोलते थे, उनको भी अरेस्ट की। ये भारत में इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। और मैं चाहूंगा और मैं होप करूंगा कि हमारा देश इसी तरह से चलता रहे। यहाँ पे हम अगर किसी बात को कहते भी हैं, हम ट्रूडो के खिलाफ भी कहते हैं, तो भी हमें अलाउड है। यहाँ पे तो 4 लेटर वर्ड भी ट्रूडो के लिए इस्तेमाल करके लोग झंडे भी लगाते हैं, वो भी अलाउड है, जो जो कनाडा, इंडिया में तो सोचा भी नहीं जा सकता। लास्ट क्वेश्चन आई रियली वांट टू आस्क राइट नाउ, बिकॉज आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, एंड आई अज्यूम 1970s और 80s में आप इंडिया में पूरा आपको ज्ञान था कि चारों तरफ क्या हो रहा था, एक आपकी एनलाइटेंड एज थी वो। हाउ डू यू सी, व्हाट डू यू फील कि 1970s 80s 19 से कंपैरेटिवली आज का इंडिया बाहर से बैठ के कनाडा से कैसा नजर आ रहा है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? सन 84 की घटना हुई, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, और जब मैं देहरादून में था, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, मैं कांग्रेस भवन भी गया। मैं आज आपके दर्शकों के साथ एक घटना गलत भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एक मन में वो रहता है। तो वो घटना हुई और मैं एक अपने रिलेटिव के साथ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हम कांग्रेस भवन के सामने गए। वहां पे भाषण चल रहे थे, और उन भाषणों के बीच में, उसके बाद, भाषण के बाद पथराव शुरू हुआ। जो आसपास के सिख रेजिडेंसेस थे, उन पर पथराव शुरू हुआ। मेरे जो मित्र रिलेटिव थे या थी, या मैं वो भी नहीं बोलूंगा, उन्होंने मेरे को बोला कि आशी, मैं चुपचाप खड़ा था, मैं देख रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आशी तुम भी पत्थर उठाओ, पत्थर मारो। तो मैंने पत्थर उठाया, फिर मैंने पत्थर उठा के देखा उस बिजनेस को, और मैंने वो घेर दिया पत्थर। तो कहते हैं आशी तुमने क्यों नहीं किया? मैं कहा उस बंदे ने थोड़ी मारा है इंदिरा गांधी को, मैं उस पे क्यों करूं? उसके उस वो क्या, वो थोड़ी है। मैं 16 साल का था उस समय, मेरी उम्र, हाँ 68 बॉर्न, 16 साल की उम्र थी। बट आई हैड दिस मच सेंस कि उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। परंतु लोगों का वो मैंने, और फिर वो जो रिलेटिव थे और थी या जो भी थे, वो भी समझे कि ये गलत कह गए। उनका नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं, ये गलत चीज हो रही है और हम यहाँ से चलते हैं। हम गए। उसके बाद रेस कोर्स एक इलाका होता था देहरादून में, जहाँ पे सिख समुदाय जो है वो काफी बहुतायत में रहता था। हम लोगों में कई लोगों ने ग्रुप्स बनाए, वहां पे खड़े हुए। तो आप अगर ये कहें कि हिंदुओं ने सिखों को मारा, तो वो नैरेटिव भी गलत है। हिंदुओं ने, कुछ मिस्क्रिएंट्स ने घटनाएं की, किस लिए की ये भी हमें पता है। और हिंदू समुदाय जो है वो बहुत स्ट्रांगली भी खड़ा हुआ सिखों की रक्षा के लिए भी। ऐसा नहीं है, उस समय भी हम सब लोग, सब बहुत से लोग भी साथ में जुड़े। और उसके बाद जो मैंने 70s 80s 90s वगैरह देखा है, वो मैंने देखा कि आई सॉ अ वेरी पीसफुल। बट 80s के एंड में 90s की तरफ जो है, जब ये इन्होंने जो वो रथ यात्रा वगैरह शुरू की, और जब इस तरह की घटनाएं शुरू की, जो एक तरह से हिंदुत्व का राइज होना शुरू हुआ इंडिया में, उससे जो डिवीजन और जो बॉम्बे राइट्स वगैरह भी हुए, और जो जो उसके बाद तो इतिहास गवाह है जो हरकतें हुई हैं। हम, सच में दुख होता है, मैं उस इंडिया से रिलेट नहीं कर पाता। मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ, तो मेरे अपने भाइयों के बीच में, सगे भाइयों के बीच में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विचारधारा अलग है, मेरी अपनी विचारधारा है। तो बहुत टूट चुके हैं भारत। और इसलिए ये एक लंबा कार्य रहेगा हम सबके लिए। और मेरे देखिए, और दुनिया का इतिहास रहा है कि हेट जो है वो कई बार आके राज करती है, दिमाग में बस जाती है। ये जो शैतान है अंदर, जो एनिमल इनसाइड, वो इन चीजों से जरा ज्यादा प्रभावित होता है।
परंतु इतिहास रहा है दुनिया का कि ये एक फेज दूध में उबाल आता है और फिर ठंडा भी होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे लाइफ टाइम में ही ऐसा वक्त आए कि इंडिया, न सिर्फ इंडिया, पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो नॉर्मल हो जाए। परंतु आगे का थोड़ा वक्त जो है वो मुश्किल रहेगा, ये मैं देखता हूँ। ਦੀਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਟਾਕ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੌਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋ ਮੌਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान करांगे। थैंक यू सो हम मच फॉर टुडे। ये मेरे लिए आनंद रहा आपके साथ बात करने के लिए, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, और किसी से भी किसी भी तरह का कार्य हो, मैं हमेशा इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं भारत में भी आता हूँ, भारत में भी कार्य करता हूँ। मुझे कहते हैं अरेस्ट, मैं कहा जो करना है कर लो। हमें इस हिंसा और इस हेट के खिलाफ खड़ा होना है। उसके लिए कोई भी कार्य होगा, हम हमेशा साथ में खड़े हैं। कनाडा के कई लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम चाहेंगे कि हमारा देश भारत, जिससे हमारा दिल दिल से जुड़ाव है, वो भी शांति में रहे, और हमारा कनाडा भी शांति में रहे, और अमेरिका, सभी देश। बट इन दो देशों में जरूर हर तरीके से शांति रहे और रहेगी। ये मैं आपसे, ये आज मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।